السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد اور میں ہوں گوہر اشرت۔ ہیڈ لائنز آپ میں جانیے۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، بھارت خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے اور حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپنے کی کوشش بھی کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی RTRBS سے خصوصی گفتگو۔ کہا کہ پہلگام واقعے کے چند منٹ بعد ہی بھارت نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا، جبکہ بھارتی ترجمان وزیر خارجہ نے 2 دن بعد تسلیم کیا کہ تفتیش ابھی جاری ہے۔ بغیر تفتیش اور شواہد کے الزامات لگانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ بھارت پاکستان میں جاری دہشت گردی کا اصل سرپرست ہے اور حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ ملک کی خود مختاری اور سرحدوں کا تحفظ پاک افواج کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ ذمہ داری پوری کی اور ہر قیمت پر کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا RTRBS کو انٹرویو۔ کہا کہ پاک بھارت تناؤ کو سمجھنے کے لیے پس منظر میں جانا ضروری ہے۔ پہلگام واقعے کے چند منٹ بعد ہی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا گیا۔ بھارتی ترجمان خارجہ نے 2 دن بعد تسلیم کیا کہ تفتیش تو ابھی جاری ہے۔ بغیر تفتیش اور شواہد کے الزام لگانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ حکومت پاکستان نے واضح کہا کہ کوئی ثبوت ہے تو کسی غیر جانبدار ادارے کو دیا جائے۔ ہم نے واضح موقف اپنایا کہ ہم تعاون کے لیے تیار ہیں، مگر بھارت نے اس منطقی پیشکش کو رد کیا اور یک طرفہ کارروائی کی۔ بھارت نے ہماری مساجد پر میزائل داغے، بچوں، خواتین، بزرگوں کو شہید کیا۔ ہم نے نہایت بالغ نظری سے کام لیتے ہوئے فوری، سخت اور مؤثر جواب دیا اور پھر دشمن کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، ہم نے ایک بھی شہری ہدف کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بھارتی وزارت دفاع کے ترجمان نے خدا کا جنگ بندی کی درخواست کی۔ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم پرتشدد قوم نہیں، سنجیدہ قوم ہے۔ ہماری پہلی ترجیح امن ہے۔ امریکہ جیسی بڑی طاقتیں بہتر انداز میں سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے عوام کا جذبہ کیا ہے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا۔ نیو یارک ٹائم نے بھی گودی میڈیا کی خبر لے لی ہے۔ لکھا کہ پاکستان پر حملوں کی خبریں جھوٹی اور بے بنیاد تھیں۔ بھارتی میڈیا کی معلومات کا کوئی بھی حصہ درست نہیں تھا۔ ساری دنیا نے مودی کے گودی میڈیا کا جھوٹ پکڑ لیا۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی خبر لے لی۔ اخبار نے لکھا کہ بھارتی میڈیا نے جھوٹی خبروں کے ذریعے بھارتی فوج کی زبردست کامیابیوں کا تذکرہ کیا، پاکستانی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کروا دیا، 2 پاکستانی لڑاکا طیارے بھی مار گرائے اور کراچی کی بندرگاہ کا ایک حصہ بم سے اڑا دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ بھارتی میڈیا کی معلومات کا کوئی بھی حصہ درست نہیں تھا۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف گمراہ کن ویڈیو فوٹیج اور مصنوعی ذہانت سے ہیرا پھیری کر کے جھوٹ پھیلایا اور مین اسٹریم چینلز اس جھوٹ میں آگے نظر آئے۔ بھارتی میڈیا کو خبریں بریک کرنے کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ بھارتی اینکرز اور مبصرین نے 2 جوہری ریاستوں کے درمیان جنگ کے لیے چیئر لیڈرز کا کردار ادا کیا۔ چند مشہور بھارتی ٹی وی چینلز نے قوم پرستی کے جوش کی آڑ میں من گھڑت کہانیاں نشر کی، یہاں تک کہ پاکستانی جوہری تنصیبات سے تابکاری کے اخراج کی جھوٹی خبر تک نشر کر دی۔ اخبار نے لکھا کہ کراچی پر بھارتی بحریہ کے حملے کی کہانی بڑے پیمانے پر پھیلائی گئی اور اس کام میں آج تک اور نیوز 18 سب سے آگے رہے۔ اور انڈین کانگریس رہنما اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اپنی حکومت کو کھری سنانے لگے۔ سوال اٹھا دیا کہ بتایا جائے کہ آپریشن سندور میں بھارت کے کتنے طیارے تباہ ہوئے، بھارتی وایو سینا نے پاکستانی سرزمین پر کون سے فتح کے جھنڈے گاڑے، ایک بات کا جواب دیا جائے۔ کتنے بھارتی طیارے گرے، حملے کی پیش کی اطلاع پاکستان کو کیوں دی؟ انڈین کانگریس رہنما اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی حکومت پر چڑھ دوڑے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے آپریشن سندور پر تنقید کرتے ہوئے کہا، حملے کے آغاز پر پاکستان کو مطلع کرنا سنگین جرم تھا۔ راہل گاندھی نے حکومت کو کھری سنائی اور کئی سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا، آپریشن سندور کے ایک حصے کے طور پر پاکستان کو اس حملے کی اطلاع دینا حکومت کا ایک جرم ہے۔ انہیں اس چیز کی اجازت کس نے دی تھی؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں راہل گاندھی نے وزیر خارجہ جے شنکر سے عوامی طور پر اعتراف کرنے پر سوال کیا کہ بھارتی حکومت نے پاکستان کو کارروائی سے آگاہ کیوں کیا۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ اس حملے کے نتیجے میں ہندوستانی فضائی کے کتنے طیارے تباہ ہوئے، یہ بھی بتایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ ہفتے ایران کے دورے کی دعوت بھی قبول کر لی۔
भारतीय जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने की हिकमत अमली। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुझे दरख्वास्त की गई कि मैं वफ़द की सरबराही करूँ और पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करूँ। मुझे आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ज़िम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। कमेटी में खुर्रम दस्तगीर, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी भी शामिल होंगे। बिलावल वफ़द के हमरा जल्द यूरोप का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने गुजरावाला कंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब में कहा कि आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सके। भारत को मालूम हो गया कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान और माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत ने कहा कि दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे और माशाल्लाह आपको भी मुबारक हो और आपके चीफ को सबसे ज़्यादा मुबारक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत इसके भी मशकूर हैं अल्लाह के कि ऐसे भाई, ऐसे बच्चे, ऐसे दोस्त हमें अल्लाह ने दिए हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिला के देख सकते हैं। दुनिया को मैसेज दिया है और उसने बहुत शोर कर लिया था। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है और हमारे बच्चे कितने जज्बे से अपनी जान माल हर चीज़ लौटाने के लिए हर पाकिस्तानी तैयार है। ये नहीं है कि सिर्फ आप हैं या मैं हूँ, या हर पाकिस्तानी अपनी धरती को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को दुश्मनों से बचाने के लिए और उनकी गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों पर हमले करके जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। भारतीय फ़िज़ाइया के एयर मार्शल A.K. भारती ने खुद एतराफ़ किया कि अगर कोई सिविलियंस मारे भी गए हैं तो उनको गिनना हमारा काम नहीं है। भारतीय अफवाज के 6 और 7 मई को खुली जारहियत में 40 सिविलियंस शहीद हुए, जिनमें 15 मासूम बच्चे, 7 ख़वातीन और 18 मर्द शामिल थे। भारतीय जारहियत से 121 पाकिस्तानी शदीद ज़ख्मी भी हुए, जिनमें 10 ख़वातीन और 27 मासूम बच्चे शामिल थे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत ने निहत्ते शहरियों को शहीद करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हकूक़ के इदारों को भारत के खिलाफ इक़दाम करना चाहिए और उसे इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि जंग के मौके पर तहरीक इंसाफ ने भरपूर साथ दिया। PTI ने पूरी तरह कौमी बयानिए को सपोर्ट किया। सेनेट और कौमी असम्बली में पेश होने वाली करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुई, जो PTI की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। बोल के प्रोग्राम में बतूल राजपूत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि PTI की सपोर्ट के बायस दुनिया में बहुत मुस्बत तासुर गया। पूरा पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए मुत्तहिद है। इस पूरी जो ये वॉर वाला मामला था वो हमारे साथ एक पेज के ऊपर रखे हैं। हाउस के अंदर भी जो कंसेंसस हुआ, रेजोल्यूशंस आए, मीडिया के ऊपर भी कुछ उनके लोग हैं और कुछ उनके सोशल मीडिया के भी यूजर्स हैं जिनका ख्याल और था, जिन्होंने इस मौके को भी जाने नहीं दिया। बट बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल हुकूमत का साथ भी दिया और एक नेशनल यूनिटी का भी मुजाहरा किया। तो मेजॉरिटी उनकी पार्टी इस मौके पे उन्होंने बिल्कुल एक पाकिस्तानी की तरह और इस इशू पे मुकम्मल तौर पे वो एक नेशनल नैरेटिव के साथ रहे हैं। तो बिल्कुल इसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ और फ्लोर ऑफ द हाउस ये रेजोल्यूशन मुमकिन नहीं थे अगर वो कंसेंसस ना बिल्ड करते। तो कंसेंसस हुआ, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी बार हुआ, जॉइंट रेजोल्यूशन आए और दुनिया में ये पैगाम गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहिद हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है, इसके सबूत भी मौजूद है। भारत हद से तजावुज़ कर जाता है। अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार क्रिस्टिन फेयर एक बार फिर पाकिस्तान के हक़ में बोल पड़ी। कहा कि बलूचिस्तान में भारत के मुलविस होने पर भारतीय सहाफ़ी अविनाश पालीवाल ने किताब भी लिखी है। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी सरकार अंदर से बिल्कुल टूट गई है।
मायूसी का शिकार है और बौखलाहट का शिकार है। मोदी सरकार शिकस्त का सारा गुस्सा निहत्थे कश्मीरियों पर निकालने लगी। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक का कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर वीडियो बयान कहा कि कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। हजारों की तादाद में कश्मीरियों को जेल में डाल दिया गया। मोदी सरकार कश्मीरियों के कारोबार भी तबाह कर रही है। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद बौखलाहट की शिकार मोदी सरकार ने अपने मुल्क के मारूफ ट्रैवल ब्लॉगर जतोई मल्होत्रा को हिरासत में लेकर 5 रोज़ का रिमांड भी हासिल कर लिया। खातून ब्लॉगर को हरियाणा से सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं और भारत में चंद लोगों को जंग चाहिए, वो लोग सीज़फायर पर खुश नहीं थे। भारतीय यूट्यूब चैनल रेटेड के एंकर ने खरी सुना दी, कहा कि जंग के मसले का हल नहीं, गोदी मीडिया खूनी दरिंदा बन चुका है, उसे टीआरपी के लिए लोगों का खून चाहिए। अस्करी क़यादत की एंट्री ने पीएसएल के मैच के दौरान पिंडी स्टेडियम में 4 चांद लगा दिए। शायकीन क्रिकेट ने आर्मी चीफ और डीजी आईएसपीआर को दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर खराज तहसीन पेश किया। स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों ने माहौल गर्म कर दिया। गुलकारों के परफॉर्मेंस से भी समा बांध दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पिंडी स्टेडियम की रौनकें उरूज पर। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एंट्री दी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। स्टेडियम में शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मारूफ गुलकार इसरार शाह और साहिर अली भग्गा की परफॉर्मेंस से शायकीन झूम उठे। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा हुआ। आसमान रंगो नूर से भर गया। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 4D में घर की छत गिरने से एक बच्ची जान बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। अहले खाना ने वाक़े का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को ठहरा दिया। कहा रात के औकात में शदीद लोड शेडिंग होती है, मजबूरन घर की छत पर सोना पड़ता है। घर कच्चे हैं, वजन ज्यादा होने की वजह से छत गिर गई। सुरजानी से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। जी काशान। आज भी सेक्टर 4D में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। छत गिरने से जो है इस घर के 9 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें एक बच्ची उम्मे हानी जो है वो जबाक हो गई हैं। 9 अफराद तमाम अफराद जो थे वो ज़ख्मी हैं, जिनको तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अब्बास रशीद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस टाइम पे तासरा घर पे मौजूद हैं। उस बच्ची के चाचा मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या वाक़या पेश आया था वो ज़रा बताइएगा, किस तरह? भाईजान 3:30-4 बजे का टाइम था। लाइट चली गई थी। लाइट जाने के बाद बच्चे कमरों से बाहर आ गए। यहाँ सेन में इसमें लेटे हैं हॉल में, और हॉल में लेटने के बाद छत ये ऊपर से गिर गई। छत गिरी है। छत गिरने के बाद 9 अफराद थे। लोड शेडिंग हो रही है। बताया गया कि रात में लाइट गई हुई थी तो ऊपर सोने के लिए गए और कुछ अफराद इस घर के नीचे मौजूद थे। जब छत के ऊपर वजन आया है, वजन ज़्यादा हो जिसके बाद इसका पलस्तर नीचे गिरा। इस वाक़े में तमाम अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए फौरी तौर पर बादशाह अस्पताल तो मुंतकिल किया गया, जिसमें से एक 11 साल बच्ची जो उम्मे हानी और दौरान इलाज दम तोड़ गई हैं। जी मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। दादू में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाके अगले 2 से 3 रोज़ के लिए गर्मी की शदीद लहर के ज़ेर असर रहेंगे। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं, मैदानी इलाके खौल गए। बालाई इलाकों में दिन का दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। दादू 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। मोरो में सूरज आग बरसा रहा है। पारा 47 डिग्री तक पहुँच गया। शदीद गर्मी से शहरियों को मुश्किलात, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। कंदकोट और खैरपुर में भी शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा दे दिया। शहर कायद में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान समंदरी हवाएं बहाल रहने की तवक्को, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़ायद रहने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक रहने का इम्कान है। ईद उल अज़हा की आमद से कबल शहर कायद में मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। इंतज़ामिया की जानिब से शहर में कुछ मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगाने की इजाज़त दे दी गई है। हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार इस वक्त मलीर मंडी में मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, उन्हीं से जानते हैं। खुरम, आगाह कीजिएगा।
शहर में कराची की जानिब से मंडियाँ जो लगाने की इजाज़त दी गई है उसमें भी देखा जा रहा है, देखने में आ रहा है कि लोगों का रुझान बढ़ा है और वो नॉर्दर्न बाईपास जाने के बजाय जो इलाकों में जो शहर के बीचों बीच मंडियाँ लगाने की इजाज़त दी गई है, शहरी वहाँ का रुख कर रहे हैं। और इनसे एक शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या आप देख रहे हैं फ़र्क, आपको क्या महसूस हो रहा है कि शहर में जो मवेशी मंडियाँ लगाने की इजाज़त दी गई है और जो नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी लगी, इसमें क्या कहते हैं आप? देखिए, ये तो एक अच्छा इकदाम है कि इसकी वजह से ये है कि हमें दूर जाना नहीं पड़ रहा, क्योंकि नादर बाईस पास यहाँ से तकरीबन जो है 1 घंटे की ड्राइव है। फिर वो सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से भी वो पैसे वगैरह चीज़ें स्नैचिंग वगैरह भी होती हैं, ये अच्छा है। अगर यहाँ पे रेट फिजिबल हो और मंडी के हिसाब से रेट हो, जैसे अभी मैंने एक जानवर का रेट लिया और 4 लाख बताया, उसी वो जानवर 2 लाख 20 का था। अगर ये उसी हिसाब से रेट दें तो लोग बानिस्बत नादर बाईपास जाने के यहाँ से आसानी से परचेजिंग कर सकते हैं। लोगों का रुझान हम देख रहे हैं बड़ा है, लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इन मंडियों का रुख कर रही है और ये देख रही है कि वो अपना पसंदीदा जानवर उनको यहाँ से मिलता है या फिर उनको नॉर्दर्न बाईपास ही जाना होगा। जी खुरम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के दिन करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो रही हैं और मवेशियों की खरीदो फरोख्त जारी है। ताहम मवेशी पालने वाले अफराद जानवरों की कम कीमत लगने का शिकवा भी करते दिखाई देते हैं। तफसीलात क्या हैं, घोटकी से जानते हैं बरकत बलोच से। बरकत, बताइएगा। जी बिल्कुल के दिन जो करीब आते जा रहे हैं, उसी दौरान जो मवेशी मंडियां हैं वो भी सजना शुरू हो गई हैं। इस वक्त मौजूद हूं मैं घोटकी की मवेशी मंडी में, जहां पर कसीर तादाद में जो मवेशी हैं वो मौजूद हैं। ख़रीदो फरोख्त का अमल जारी है। सूरत हाल क्या है जानते हैं यहाँ पर मौजूद जो ख़रीदार हैं। आप हमें ये बताएं कि इस बार मंदी है या फ़ायदा हो रहा है? नहीं, इस बार यह क्या नाम है, जानवर बहुत महंगे हैं। इधर बेचने के लिए आते हैं तो यानी दाम कमती लग रहा है और मंडी में माशाल्लाह माल भी बहुत है, मंडी भी सजी हुई है। तो डेढ़ की मैं आज मंडी में खड़े अल्हम्दुलिल्लाह, तो लेने के लिए जाते हैं तो बहुत महंगा मिलता है जानवर और इधर बेचने के लिए आते हैं तो बहुत कम बिकता है जानवर, कम से कम 10 से 12 हज़ार कम बिक रहा है जानवर। इस वक्त घोटकी के तमाम इलाके, जिसमें डहर की, ओबाड़ो, मीरपुर माथेलो, खानपुर महर के तमाम इलाकों में ईद उल अज़हा के मवेशियों की खरीदो फरोख्त का अमल जो है वो तेज़ हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और भी आपको बताएं कि कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से हराकर PSL 10 के प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 238 रन के हदफ के पहाड़ जैसे ताक़ुब में बाबर 11 और 214 रन तक महदूद रही। बाबर आजम की 94 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स ड्राई गई। रावलपिंडी में किंग्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 237 रन बनाए। कप्तान डेविड वार्नर ने 50 बॉल्स पर 86 और जेम्स रेंस ने 42 गेंदों पर 72 रन की इनिंग्स खेली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।